Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself, Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor. Dear student, today we are going to discuss about the question of exercise 8.1, which is very important exercise and contain the topic application of integral. In this exercise, we will discuss how to use the application of integration while finding the area of bounded curves. Okay. In my last video, I have discussed how to find area bounded regions. Okay, between any simple curves and between any curve and any straight line. I have also solved two questions from exercise 8.1. So today in this video lecture I am going to discuss the questions from exercise 8.1 from question number 3. So let's start the video. The question number 3 is find the area question number 3 is find the area of the region bounded by question number 3 area bounded by the curve x square is equal to 4y and lines y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant and the y axis in the first quadrant. This is our question, students, and we have to solve it. So first, this is a parabola, student, having symmetric according y-axis in the positive direction. So we have given here a parabola x square is equal to 4y. So this parabola is symmetric about y-axis in the positive direction. Since the sign is positive here, so this is symmetric about the positive direction of y-axis. So first we make a diagram of this parabola. That this is x-axis, this is y-axis. Now x square is equal to 4y, so the parabola will be of the kind x square is equal to 4y. Okay. Now see the lines y is equal to 2 and y is equal to 4. So this is the origin meter. Let this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So y is equal to 2 is the line passing from this point and y is equal to 4 the line passing from this point. Okay. So this is the line y is equal to 2 and this is the line y is equal to 4. So listen, we need to find the area bounded by this curve, this parabola, and the lines y is equal to 2 and y is equal to 4 and the y-axis in the first quadrant. So beta, this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. So we need to find the area lying in the first quadrant and bounded by the parabola and the curve y is equal to 2, y is equal to 4 and y-axis. So our required region is this P, Q, suppose this point is R and this point is S. So our required area is, this is our required area. ये हमारा एरिया है जिसे हमें फाइंड करना है. ठीक है. So we need to find area of region P, Q, R and S. P, Q, R, S. हमें इस एरिया, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. So for this we need to draw a strip. ठीक है, like that. Let us suppose this is a strip. Okay. This is a strip beta having length. अब लेंथ किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम? x एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे ना. So having length x and breadth is dy. ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी इसकी x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी dy. अब हम चूंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं बेटा, किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? y एक्सिस के. अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते थे तो हम क्या करते थे? x * dy. ठीक है, y * dx. सॉरी, अब चूंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो लेंथ लेंगे x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? बहुत ही स्मॉल होगी y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ब्रेथ हो जाएगी dy. सो एरिया dA = कितना हो जाएगा? स्मॉल एरिया जो फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिप का, x * dy. x * dy. So area of region PQRS. ठीक है, इस PQRS इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? बिटवीन 2 to 4. अब देखिए कहां से कहां तक जा रहा है ये एरिया, कहां से कहां तक बाउंडेड है? फ्रॉम y = 2 to y = 4. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स y = 2 to y = 4. सो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 2 to 4 x dy. Now we need to find the
वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, ये जो इक्वेशन दी हुई है हम पैराबोला की, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो वैल्यू ऑफ x विल बी √4y. सो दिस विल बिकम 2 to 4 √4y dy. नाउ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, सो ये बाहर आ जाएगा 2. इंटीग्रेशन 2 to 4 √y dy. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ √y will be y to the power 3 by 2 upon 3 by 2 and limit 2 to 4. So this will become twice, this will become 2 by 3, y to the power 3 by 2 and limit will be 2 to 4. So this will become 2 to the 4 upon 3. Now how we will apply the limit? First we will put the upper limit here minus, then we will put the lower limit here. So 4 to the power 2 by 3 minus 2 to the power 2 by 3, है ना. Now बेटा solving it, 4 can be expressed as, किस तरीके से 4 को एक्सप्रेस करेंगे, सॉरी ये पावर 3 by 2 है ना, पावर will be 3 by 2, so 3 by 2 3 by 2. So 4 can be expressed as 2 to the power 2 whole power 3 by 2 minus इसको हम लिख सकते हैं 2 into √2, 2 to the power 3 by 2 ब्रेक कैसे होगा, 2 into 2 power 1 by 2. So यहाँ पे 2 and 2 get cancel out, so 4 upon 3 time this will become 2 to the power 3 minus 2 यानी our final answer is 4 upon 3 time and within bracket 8 minus 2 square unit. This is our final answer. Pause the video and take this answer. Now better next question. Let's discuss the next question. The next question number 4. Find the area of the region bounded by the ellipse, and ellipse is given as x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. Okay, this is the ellipse which we have given, and we need to find the area bounded by this ellipse. So first we will combine it with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, so that we get a square is equal to 16 imply a is equal to plus minus 4 and b square is equal to 9 imply b is equal to plus minus 3. So it is clear from here that a is greater than b, means जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है 4 और माइनर एक्सिस की लेंथ 3. और मैंने क्या बताया था लिमिट्स में, जब मैंने लिमिट्स का डिस्क्रिप्शन दिया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जिस वेरिएबल का डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी, इलिप्स की जो एक्सिस होगी मेजर एक्सिस वो उसी एक्सिस के अलावा सिमेट्रिक होगी. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे जो अमाउंट है हमारे पास डिनोमिनेटर में वो क्या है, ग्रेटर देन वाई स्क्वायर के नीचे वाले अमाउंट से. तो आपका जो इलिप्स बनेगा वो सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, यानी कि जो मेजर एक्सिस बनेगी वो कहां बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी. बात समझ में आ रही है, बिकॉज एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर क्या है 16 which is greater than the denominator of y axis. So this is the major axis beta, this is major axis and this is minor axis. Okay, this is major axis, this is minor axis, this is the center, this is focus first f1, this is focus second f2. So the coordinate of focus is c comma 0 here and minus c comma 0 here, and the coordinate of vertex v1, this is v1, this is v2. So the coordinate of the a comma 0 and the value of a is 4. So this will be 4 comma 0 and this will be minus 4 comma 0. This will be 0 comma 3 and this will be 0 comma minus 3, है ना, value of b. अब हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस इलिप्स. इस इलिप्स ने जितना एरिया आपका कवर किया हुआ है इसका हमें क्या करना है, फाइंड करनी इसकी वैल्यू. तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट और एक पार्ट, टोटल 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो हम करेंगे क्या, 4 के 4 इक्वल पार्ट है, तो फाइंड द एरिया ऑफ वन पार्ट एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 4, देन यू विल गेट द होल एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स. तो हमने करना क्या है, केवल इस रीजन का, रीजन O, सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. एरिया आप फाइंड करिए, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड
by ellipse in first quadrant. So area of ellipse bounded by area of region bounded by ellipse in first quadrant, ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट जाएगी 0 to 4, लिमिट जाएगी 0 to 4, 0 to 4। अब क्या करेंगे? फिर वही बात, एक स्मॉल स्ट्रिप यहां पे हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक स्मॉल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, हैविंग ब्रेथ dx एंड लेंथ y, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज y इंटू dx, है ना, y इंटू dx, और 0 टू लेके 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मुझे मिल गया। अब हमें तो पूरे एलिप्स का चाहिए ना एरिया, तो पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए जो एक रीजन का एरिया हमने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा? सो रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय ellipse is equal to 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx। ये एरिया था बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितना एरिया ellipse ने कट किया है, बाउंडेड किया है उसका। दिस इज द एरिया ऑफ द ellipse बाउंडेड बाय ellipse इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ellipse। ये तो पूरा ellipse का बाउंडेड बाय द ellipse रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा इसका, क्योंकि 4 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो करेंगे क्या? y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहां से। द वैल्यू सिंस y square upon 9 is equal to 1 minus x square upon 16, that is 16 minus x square upon 16. So y square will be 9 upon 16 times 16 minus x square. So the value of y will be root of 9 upon 16 and 16 minus x square, यानी कि हो जाएगा बेटा कितना? 3 upon 4 टाइम रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ये वैल्यू आएगी आपकी y की, पुट करिए y की वैल्यू वहां। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 4, ओके, 3 upon 4 टाइम रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, and this can be written as 3 upon 4 is a scalar quantity, so take it out of the sign of integration 0 to 4 root 4 square minus x square dx, 4 cancel out, so ये हो जाएगा 3 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट 4 माइनस x, 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब बेटा एक फार्मूला होता है, ठीक है, यू हैव टू लर्न इट। इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम a स्क्वायर sin इनवर्स x upon a। This is a formula for root a square minus x square. So here the value of a is 4. Now apply the formula here. ये जो फार्मूला है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। So what is the value? वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 3 टाइम 1/2 टाइम x रूट 16 minus x square plus 1/2 टाइम a square that is 16 sin inverse x upon a that is 4 इंटीग्रेशन 0 to 4, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन इस फार्मूला की हेल्प से हमने ब्रेक कर दिया। नाउ अप्लाई द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये अमाउंट हो जाएगा बेटा 3 टाइम, ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है आपको, यस इट इज। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई द अपर लिमिट, सो 1/2 टाइम इनटू 4 16 minus 16 plus 1/2 टाइम 16 sin inverse 4/4, this is upper limit, this is upper limit माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां पे x है वेरिएबल उसकी जगह पे पुट करेंगे 0, तो यहां पे 0 रखते ही पूरा पोर्शन 0, और यहां पे साइन इनवर्स 0 यानी 0, तो ये भी 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये मिल जाएगा हमें यहां पे 3 टाइम 16 minus 16 minus 16 0, तो ये फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा 0 प्लस 16/2 into sin inverse 1, so this is 3 टाइम 2 8 is 16, 8 into sin inverse 1 that is 5/2, 2 4 is 8 and 4 3 is 3 into 4 pi
that is 4 3 12 pi square unit. So this will be your required answer. For the bit will take the screenshot. So the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, है ना. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. अब यहां पे देखिए जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है. सिंस 9 इज ग्रेटर देन 4, सो एक्सिस will be symmetric about y-axis. जो आपका पैराबोला का डायग्राम बनेगा, इलिप्स का डायग्राम बनेगा बेटा, वो आप मेजर एक्सिस किसके अलोंग जाएगी, y एक्सिस के अलोंग. ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका. ठीक है ना. x x dash y y dash. ओके. This is the focus first, f1. This is the focus second, f2. This is the vertex, ठीक है, v1, and this is vertex v2, है ना. तो इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको. ठीक है. x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. कंपेयरिंग x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ठीक है. अब एक्सिस चेंज हो गई तो मेजर एक्सिस अलोंग चली जाएगी y एक्सिस पे. So on comparing b square is equal to 4, so b is equal to plus minus 2 and a square is equal to 9, that is a is equal to plus minus 3. Okay, so this point will be 2 comma 0, this will be minus 2 comma 0, this point will be, since major axis is along y axis, है ना, और this is minor axis. Now okay, so coordinate of v1, major axis, what is the value of a square to 9, so a is equal to plus minus 3. So coordinate of this point will be 0 comma 3 and coordinate of this point will be 0 comma minus 3. Okay, now again we need to find the area bounded by this ellipse. Okay, so for that we will also find the area of one part of this ellipse, means the area bounded by this ellipse in first quadrant. We will find it and multiply by 4 so that we will able to find the area bounded by whole ellipse. तो केवल एक पार्ट का, एक रीजन, है ना, एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो आपको पूरा जो बाउंडेड एरिया है इस ellipse के द्वारा वो फाइंड हो जाएगा. ठीक है. तो एरिया बाउंडेड बाय दिस ellipse इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके लिए क्या करें आपके ऊपर है. आप चाहें तो एरिया अलोंग y एक्सिस फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो एरिया अलोंग x एक्सिस फाइंड कर सकते हैं. तो हम x एक्सिस के अलोंग ही फाइंड करते आए हैं, तो x एक्सिस के अलोंग ही हम एरिया फाइंड करेंगे. So for that we need to draw a small strip like that. Okay, having length y and breadth, small breadth dx. So area of ellipse, area of region bounded by ellipse in first quadrant, है ना. area of region bounded by ellipse in first quadrant. ठीक है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं कितना, DA. ओके, सो सॉरी DA नहीं, उसको एक नाम दे दीजिए A1. ठीक है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एलिप्स के द्वारा जितना भी पार्ट घेरा गया है उसको हमने A1 से नाम कर दिया था, उस एरिया को हमने A1 से डिनोट किया. सो इंटीग्रेटेड बिटवीन 0 to 2, कहां से कहां तक जा रहा है इसका एरिया, बिटवीन 0 to 2 x एक्सिस के अलावा. सो इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx. नाउ अगेन, सो द एरिया बाउंडेड बाय whole ellipse, area bounded by whole ellipse equal to 4 into A1, है ना.
A1 क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया कवर कर रहा है। तो अगर पूरे एलिप्स का करना है, पूरे एलिप्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक का एरिया निकालिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम A1, दैट इज 4 टाइम 0 to 2 y dx। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है बेटा, यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां पर रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आई होप इसको आप कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया होगा। ठीक, सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis enclosed by x axis line x is equal to root 3 by and circle x square plus y square is equal to 4 and circle x square plus y square is equal to 4। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने एरिया फाइंड करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, वी नीड टू फाइंड एरिया enclosed in first quadrant by x axis and this line and this circle। so beta first we will draw the diagram। so equation of circle is x square plus y square is equal to 4। on comparing this with the general equation which is x minus x whole square plus y minus a whole square is equal to r square, what we get, the origin center, the coordinate of center will be h और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, we can express it like x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 2 square। अब इसको जरा इससे कंपेयर करें, this is the general equation ना, this is general equation of circle। so on comparing both sides we get the coordinate of center will be 0, 0। it means that the center of this circle will be at origin and what is the radius, radius is plus minus 2 on comparing both sides, right side। so the diagram will be, this is the circle having center at origin, okay, and radius कितनी निकल के आती है इसकी, radius is 2, so 2 will be the radius है ना। so इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2, 0। similarly इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, 0। coordinate of this point is 0, 2 and coordinate of this point will be 0, -2। now this is all our circle। now this line is x is equal to root 3y। ठीक है, so root 3y x is equal to y कहां से पास आउट होके जाती है, ओरिजिन से। अगर मैं बात करूं इस लाइन की x is equal to y, तो ये कौन सी लाइन होती है, द लाइन going through passing through origin making an angle of 45 degree with the positive direction of x axis। so the line x is equal to root 3y which is a multiple of that line, so it will also passing through the origin। ये भी origin से ही पास होके जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ रही है। और इसका अगर हम कंपेयर करें इसको x is equal to y equal to mx plus c से, ठीक है, और इसको ब्रेक करें y is equal to 1/√3 टाइम x। सो कंपेयर करने पे स्लोप कितना मिल रहा है इसका, 1/√3 है ना, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सो इसका जो स्लोप होगा, एंगल कितना बन रहा है इसका, एंगल कितना बनाएगी लाइन ओरिजिन से 30 डिग्री है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सो ये लाइन है ओरिजिन से विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 30 डिग्री के एंगल पे मूव करेगी लाइन, तो कुछ ऐसा ही जाएगी लाइन। ठीक, अब आपको करना क्या है, we need to find the area bounded by the circle as well as the line and x axis in the first quadrant। तो बेटा ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये लाइन, ये सर्किल और x एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया मेरा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। ओके, सो फर्स्ट दिस इज द पॉइंट C, this is the point B, sorry, this is the point A, okay, and this is suppose the point B। so we need to find required area क्या है आपका, required area आपका हो गया एरिया कौन सा, एरिया CAB, ठीक है, this is our required area। so to find this area
अब क्या करेंगे, सीधे सीधे 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो 0 से 2 तक में अगर आप ध्यान से देखें तो सर्किल का भी एक पोर्शन आ रहा है और स्ट्रेट लाइन का भी। तो इस काइंड में मैंने बताया था एरिया बिटवीन सिंपल कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय एनी कर्व एंड एनी लाइन, वो वाला क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, हियर द कर्व इज द सर्किल एंड द लाइन इज द स्ट्रेट लाइन। तो जब एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सी हियर फर्स्ट हम देखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कर्व का और लाइन का, लाइन का और कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इफ एनी टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होते थे वो कैसे हम फाइंड करते थे, उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके। सेम एज सिंस दिस A is the point of intersection of curve and the circle, so the coordinate of A will be found with the help of equation of circle and straight line। तो स्ट्रेट लाइन और सर्किल की इक्वेशन आपको दे रखी है, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसके फाइंड करेंगे। तो सर्किल की इक्वेशन हमें यहाँ पे दी गई है x² + y² = 4 and equation of line is x = √3 times y। So substitute the value of x here, that is √3y² + y² = 4, this will become 3 times y² + y² = 4। So 4 times y² = 4 imply y² = 1, that is y = ±1। तो y की वैल्यू तो ±1 आ चुकी है। तो वैल्यू ऑफ x when y = 1 then x = √3 into 1, that is √3। when y = -1 then x = √3 into -1, that is -√3। हाँ, तो सिंस ये पॉइंट, अब ये जो लाइन है इस सर्किल को दो पॉइंट में कट कर रही है, एक पॉइंट ये भी है, सपोज दिस इज a', तो इसके कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में x y दोनों नेगेटिव, तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -√3, -1, बट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3, 1। सो x कोऑर्डिनेट यहां पे हो जाएगा √3, 0। ओके, नाउ द पॉइंट इज फर्स्ट वी विल फाइंड सो रिक्वायर्ड एरिया। बेटा इसको रब कर ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया को वी हैव टू ब्रेक। हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए, इस पॉइंट को मान लो डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए डी प्लस एरिया ऑफ रीजन डी ए बी डी। डी ए बी डी, ठीक है। जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो ये एरिया हो जाएगा A1 और ये हो गया A2। सो रिक्वायर्ड एरिया A विल बी A1 + A2, ठीक है। A1 इस ट्रायंगल का हो गया और A2 इसका हो गया। तो ट्रायंगल का तो सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हैं आप, बट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ही इसे निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी पता है मुझे यहाँ से यहाँ तक लेंथ √3 है और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ वो भी मुझे पता है 1 है, तो वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत हमें होनी नहीं है, बट स्टिल वी विल फाइंड इट बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो A1 कैसे फाइंड करेंगे, सो A1 इस पार्ट का, इस रीजन का एरिया है। सो फॉर A1 वी विल इंटीग्रेट बिटवीन 0 to √3 x एक्सिस में 0 to √3 y dx प्लस अगला पोर्शन √3 to 2 प्लस √3 to 2, √3 to 2 एरिया, सेकंड पोर्शन A2 मींस y dx रखेंगे यहां पे भी। अब यहां पे है 0 to √3 y dx। सो फर्स्ट पार्ट तो ध्यान से देखेंगे बेटा। सो जो A1 वाला पोर्शन है इसमें देखिए कौन सा पोर्शन, स्ट्रेट लाइन का पोर्शन आ रहा है कि सर्किल का पोर्शन आ रहा है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y इट इज क्लियर कि हमें y की वैल्यू कहां से लेनी है, सर्किल की इक्वेशन से या फिर स्ट्रेट लाइन की। तो बेटा इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इस रीजन में कौन सा आ रहा है पोर्शन, इस रीजन में पोर्शन आ रहा है स्ट्रेट लाइन का A1 में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हिच इज x/√3 टाइम dx प्लस √3 to 2। अब इस A2 का एरिया देखिए, √3 से 2 तक जा रहे हैं जब आप, तब आपको कौन सा पोर्शन मिल रहा है,
है, सर्किल का पोर्शन मिल रहा है, यहां से देखिए डायग्राम, तब आपको पोर्शन किसका मिल रहा है, सर्किल का। तो सर्किल की इक्वेशन से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, which is √4 - x² dx. So this is our required area. Now integrate it. ठीक है? So this will become 1/√3 time integration of x is x² by 2 and limit is 0 to √3 plus integration of this is 1/2 time x √4 - x² plus 1/2 time a square which is 4 sin inverse x/2 and limit is √3 to 2. बेटा आप अप्लाई करेंगे लिमिट, so 1/√3 into 1/2. Now upper limit √3 square minus lower limit is 0 and here 1/2 time upper limit is 2. So जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे बेटा, जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 टाइम 4 sin inverse 2/2. दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √3 पुट करेंगे यहाँ पे, सो √3/2 4 minus √3 square that is 3 plus 4/2 into sin inverse √3/2 sin inverse √3/2. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा 1/2 √3 एंड √3 square that is 3 प्लस ये पोर्शन 0 हो गया प्लस 2 2 जा 4, सो 2 टाइम साइन इनवर्स 1. ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √3/2 तो 4 - 3 दैट इज 1. ठीक है, प्लस 4/2 2 2 जा 4, सो 2 into sin inverse √3/2. सो यहाँ बेटा √3 से √3 कैंसिल होगा, ये देगा √3/2 प्लस 2 into sin inverse 1 दैट इज 5/2 है ना. ओके, माइनस यहाँ पे √3/2 एंड प्लस माइनस अगेन माइनस 2 into sin inverse √3/2. साइन में √3/2 वैल्यू होती है किसकी 60 की, सो sin inverse √3/2 gives us value π/3. ठीक है, अब इसमें क्या है √3/2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो π minus 2π/3 π minus 2π/3 that is 3π minus 2π π/3 square unit. This is our final answer. Pause the video and take the screenshot. So बेटा this is all about. ठीक है, हमने यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन कर लिए. नाउ हम टेकिंग द 7th क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² plus y² is equal to a square cut off by the line x is equal to a/√2. So नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से. ये क्वेश्चन भी यहाँ भी हमने बाउंडेड एरिया फाइंड करना है. ठीक है, बिटवीन एनी कर्व and the curve is circle and any line which is a straight line. ठीक है, सेम है एरिया बाउंडेड बिटवीन सिंपल कर्व वाला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. So next question number 7. Find the area of a smaller part of the circle x² plus y² is equal to a square and cut off by the line x is equal to a/√2. ठीक है भाई. So first we will draw the circle since this is a circle having center at origin. So this is the circle beta and this is a line x is equal to a/√2. तो पहले तो इसका रेडियस क्या है बेटा, रेडियस a है, तो this will be a,0 and this will be minus a,0. Suppose this is the line, x is equal to a/√2. ठीक है, अब हमें देखना है कि स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, इधर वाला होगा या इधर वाला होगा. ओके, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखिए. x is equal to a/√2. अगर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूं बेटा यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिलती है मुझे √2a/2 है ना. सो a/2 रेडियस कितनी है इसकी, दिस इज ओरिजिन सेंटर
ओरिजिन इसका क्या है, सेंटर। तो ये जो रेडियस है a। अब a/2 क्या होगा, जस्ट हाफ। a/2 क्या होगा, जस्ट हाफ। लेकिन ये क्या है, x की वैल्यू जो है वो कितनी है, √2 टाइम्स a/2 एंड दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन a/2। ये क्या होगा, a/2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मतलब कहने का जो लाइन का स्मॉलर पार्ट होगा वो इधर को होगा, ना कि इधर को। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला, दिस पोर्शन इज स्मॉलर, है ना। a/2 तो बीचों बीच से जाएगा ना, ये कितना हो रहा है, a/2 2 टाइम्स। तो a/2 अगर बीचों बीच से जाएगा, ये थोड़ा सा उधर होगा, उसके थोड़ा सा उधर होगा, तो स्मॉलर पार्ट ये होगा ना। तो हमें इस एरिया, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। सो सपोज अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a/2। सो रिक्वायर्ड एरिया इज a equal to integration between a/√2 to a y dx, ठीक है ना। x एक्सिस के हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इससे y dx। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कोई बाउंडेशन है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंडेशन है नहीं, तो बेटा नीचे वाला एरिया भी आपको फाइंड करना होगा। तो आप इसका एरिया फाइंड करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि नीचे का एरिया भी तो फाइंड करना होगा आपको। नाउ put the value of y from the equation of circle. So this will become 2 times root a square minus x square dx integration a/√2 to a। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इससे आगे आप इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करके वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। So this is all about from today's video lecture. In my next video lecture I will discuss differential equation. Till then, bye bye, take care and have a nice day.